Welcome to my channel Economics Window. Today we are here to discuss the very first chapter of democratic politics, which is Indian Constitution. In this video we'll be discussing about what is Constitution, why do we need Constitution, and what are the important features of our Indian Constitution. Okay, जब Indian लग जाता है it means it is particularly of our nation, our country, which is India. Okay. Starting with the very first word, which is constitution. Constitution को क्या बोलते हैं? संविधान. Okay, what is constitution? It is a set of rule that a nation follows. एक ऐसा सेट ऑफ रूल जो कोई भी कंट्री या नेशन है, कोई भी देश है, जो उसको फॉलो करता है और उसी गाइडलाइंस पे फंक्शन करता है. ओके, यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है सो दैट द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लियर टू यू गाइज. एग्जाम्पल, जैसे फुटबॉल गेम है. ओके, सो फुटबॉल गेम के जैसे कुछ रूल्स हैं जिसको हर प्लेयर्स को फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज विदाउट दोज रूल्स फुटबॉल की मीनिंग कोई गेम नहीं रहेगा, गेम की मीनिंग. ओके, सो जैसे एग्जाम्पल है, जो बॉल है उसके अंदर कैसे खेली जाती है? पैरों से. फुटबॉल इज प्लेड बाय लेग्स. ओके, अगर प्लेयर्स हाथ से खेलना शुरू कर दे, विल इट बी स्टिल द सेम गेम? फुटबॉल ही रहेगा वो? नो. क्यों? क्योंकि इसके सर्टेन रूल्स है कि पैर के साथ ही खेलना है. अदर थिंग इज, if the ball touches the arm of the player, it is foul. Except the goalkeeper, the ball cannot touch the arm of the player. This is the other rule of the game football. Similarly, there are several other rules of this game which make this game a game. Okay, because certain rules have to be followed if you want to play this game. Similarly, we have other rules in the game of cricket, hockey, etc. These rules are fundamental to the game. Fundamental क्या? Important है, जिसके बिना वो गेम नहीं है. अगर कुछ रूल्स को फॉलो ना करें, अगर मैं बोलूँ मैं फुटबॉल हाथ से खेलूंगी और कोई फाउल वगैरह नहीं होता, कोई रूल्स ही नहीं, क्या मजा आएगा गेम खेलने में? नो. सो सिमिलरली द रूल्स आर फंडामेंटल टू द गेम. सम रूल्स आर फंडामेंटल टू आवर नेशन which is mentioned in the constitution, in the written form of our constitution, which is the संविधान की book. Okay. Similarly, if we talk about society, okay, there are certain fundamentals, some rules and regulations that a society follows. Okay, why we follow certain fundamentals, rules and regulation? So that we can exist together and form a community. ठीक है ना, बहुत लार्ज नंबर में लोग रह रहे हैं, एक कम्युनिटी बनती है एंड कम्युनिटी से फिर आगे नेशन बनेगा हमारा. ओके, देयरफॉर टू एग्जिस्ट टुगेदर, टू कम एंड लिव टुगेदर, वी नीड सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, द सम फंडामेंटल थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर अस टू फॉलो टू मेक अ concept of nation. Okay, now I think the definition of constitution is clear. It is a set of rules. Okay, and also we can define it in our own words, like a document that contains various articles on how a nation was formed and how it will function and what norms or what rules will it follow. Understanding the meaning of constitution, now let's come to the next question, why we need constitution. This is also very important. Okay guys, listen very carefully. There are some features which are crucial for the working of our nation, our country. Therefore, हमें उन चीज़ों को कैसे उन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, कैसे एक कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, therefore constitution serves various purposes. Like the very first is, it tells us about the certain ideals that form the basis of a nation. ये हमें certain चीज़ें बताता है about the nation, क्यों, किस बेस पे ये नेशन बना हुआ है. ओके, विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ नेपाल हियर. लाइक इन प्रीवियसली इन नेपाल इट इज आवर नेबर नेशन. आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट फैक्ट. नॉर्थ में है इंडिया के एंड इज आवर नेबर कंट्री. ओके, सो प्रीवियसली इन 1990 नेपाल एडॉप्टेड द रूल ऑफ मोनार्की. मोनार्की मतलब एक ही इंसान का रूल ऑफ द किंग. सारी पावर्स, डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में रहेगी? राजा के हाथ में. ओके, सो पावर वॉज इन द हैंड ऑफ वन पर्सन हु वॉज द किंग. ओके, नाउ सो पीपल मूवमेंट हैपेंड देयर इन नेपाल. दे फॉट फॉर सेवरल ईयर्स एंड फाइनली इन 2006 दे एडॉप्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने संविधान अपना लिया 2006 में. ओके, एंड नाउ द चेंज ऑफ गवर्नमेंट हैपेंड देयर. अर्लियर देयर वर अ मोनार्की, नाउ द रूल ऑफ
rule changed and it became the democratic nation. Okay, so आइडल्स बताता है कंट्री किस गाइडलाइन पे फंक्शन कर रही है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम. ओके, सो आइडल्स बताते हैं कि कौन सी गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, क्या कुछ हम फॉलो कर रहे हैं, क्या रूल है नेशन में. ओके, नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम भी बताता है कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है. ओके, सो लाइक इन नेपाल के केस में हमने देखा था, पहले किंग रूल था, मोनार्की था, लेकिन आफ्टर 2006 इट चेंज इनटू द पीपल रूल. ओके, चॉइस ऑफ पीपल आ गया, डेमोक्रेटिक नेशन बन गया. ओके, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. आई गिव यू अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल टू यू गाइज. टेक योर क्लासरूम. ओके, सपोज इफ आई मेड ए द क्लास मॉनिटर. Okay, and this monitor dominates, bullies you guys and you guys don't like him at all. Okay, झूठी शिकायतें लगा देता है टीचर को. So if the monitor does change, okay, sorry, if the monitor does change, it is called democracy. But if the monitor does not change, whatever so happened, you guys don't like him, you go and complain to the teacher and ask him or her to change the class monitor, still the teacher does not change it, it will be called a monarchy, because the monitor, no matter whatever goes wrong, the monitor will not be changed. I hope the nature of the political system is clear to you guys. Okay, so democracy क्या होगी अगर change हो जाता है monitor. तुम्हारी पसंद से मॉनिटर बनेगा, तुम लोगों को ही पसंद होगा, तुम भी उसको रिस्पेक्ट करोगे, ऑल्सो विल फॉलो हिम. ओके, उसके रूल्स और उसकी गाइडलाइन को फॉलो करोगे, विल मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास. देयरफॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हेल्प अस इन लेटिंग नो द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम. जैसे कि यूएस के अंदर कौन सी यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ कोई पीएम नहीं है, प्रेसिडेंट का रूल है. जब हम अपनी बात करते हैं इंडिया की, वी हैव कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर रूल. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस इन नोइंग द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इट प्रोवाइड द सेफगार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर. ओके, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी वगैरह सब चीज़ें मेंशन्ड है, हमारे फंडामेंटल राइट्स है हमारी, हमें प्रोवाइड करता है. देयरफॉर उसके अलावा ये थोड़े से हमें मेजर्स भी देता है, जिसकी वजह से कोई भी जो गवर्नमेंट है या मेजॉरिटी पावर है, दे कांट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ. ओके, नेक्स्ट थिंग इज it also provides us that the powerful should not dominate the less powerful people. Okay, the majority do not dominate the minority. Okay, I'll give you one example. Take a class here. Suppose they have 10 girls and 23 boys in it. Okay, तो obvious है 23 boys are more in number, तो इनकी majority हुई, girls के number कम है तो minority हुए. Okay, एक अच्छा decision क्या होगा कि मैं माइनॉरिटी का भी ध्यान रखूं, गर्ल्स की प्रेफरेंसेस का भी ध्यान रखा जाए. ठीक है, और एक बैड डिसीजन और नॉट सो गुड डिसीजन क्या होगा, आई गो विद द मेजॉरिटी, बॉयज के साथ ही चली जाऊं मैं, क्योंकि नंबर में ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग डिमांड करें तो मैं वैसा करूं. ओके, सो ये क्या बताता है कॉन्स्टिट्यूशन कि जो मेजॉरिटी है दैट शुड नॉट डोमिनेट द माइनॉरिटी, माइनॉरिटीज का भी ध्यान रखा जाए. ओके, the last and the very important point here is it also protect us from ourselves. Now you must be wondering ये क्या point है. Okay, we'll take one example. जैसे एक girl है, उसका कल एग्जाम है. Okay, but उसकी जो पूरी फैमिली है, they are watching TV, that also his favorite serial. Okay, उसको भी वो शो देखना है, but अगर वो शो देखेगी तो पढ़ाई नहीं कर पाएगी और एग्जाम में क्या करेगी, कल कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि पढ़ाई वाली टाइम तो टीवी देख रही थी. तो शी डिसाइड्स टू गो एंड टॉक टू द फैमिली. वो गई, उन्होंने सजेस्ट किया इफ यू ऑल्सो गाइज नॉट वॉच द टीवी एंड स्विच इट ऑफ, दिस विल हेल्प मी टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन एंड थिंकिंग अबाउट दैट टीवी सीरियल हियर. एंड नाउ द फैमिली अग्रीज एंड द गर्ल कुड स्टडी एंड इन द नेक्स्ट डे द girl felt really happy by her decision and her family's decision that she could study. अगर वो खुद के ही सुनती, अपने मन का करके और टीवी देखने बैठ जाती, तो एग्जाम में क्या वो कुछ कर पाती, नहीं. Therefore, similar lines पे Constitution also protect us from certain decision that may have adverse effect on the nation.
Okay, now a good constitution does not allow to change the fundamental basic structure. हमारे संविधान के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, ओके, जो कि बेसिक फीचर्स हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता. वन ऑफ इट इज फंडामेंटल राइट. तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं जिसमें चेंज नहीं लाया जा सकता. बट देयर आर अदर देन बेसिक स्ट्रक्चर थिंग्स विच आर ओपन टू चेंज. ओके, जैसे राइट टू वोट ले लेते हैं. ओके, तो पहले हमारा ईयर क्या था, कितने साल के लोग वोट करते हैं, 21 ईयर्स का. फिर हमने उसमें थोड़ा चेंज लाए हम, और हमने उसको कर दिया 18 ईयर्स. ऐसे चेंजेस ला सकते हैं इंस्टेड ऑफ, अगर मैं ये करती कि गवर्नमेंट ये करती कि वोट कोई भी नहीं करेगा, एक ही जन का रूल रहेगा, तो वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर करता. ओके, देयरफॉर ऐसी चीजें नहीं कर सकते जो इस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हिला दें. बट सम चेंजेस कैन बी ब्रॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल अकॉर्डिंग टू द टाइम की डिमांड या पीपल की डिमांड. उनके बेटरमेंट के लिए डिसीजन लाए जा सकते हैं, चेंजेस लाए जा सकते हैं. बट all of the thing could not be changed. Okay, I hope this is clear. Okay guys, here are some facts you guys need to memorize. B.R. Ambedkar was known as the father of Indian Constitution, and very important, when did we adopted Constitution? Here we are talking about Indian Constitution. Okay, every country have different constitution, and we'll be reading about Indian Constitution in my next video. Till then, you just memorize these two facts. Father of Indian Constitution, B.R. Ambedkar, and when did we adopted Constitution? On 26 Jan 1915. Here are some of the questions you guys need to comment in the comment section so that you can tone your brain. First question is, who was the Prime Minister that time? That time means in 1950 when we adopted our Constitution. Who was the Prime Minister then? Next question is present PM of our nation. You need to mention the name of the present Prime Minister of our country. And third is, what do you understand by the term Constitution? That's it for today's video guys. Do not forget to like, share and subscribe, and do not forget to comment. Comment in the comment section. This is the most important part of our video so that I can know what have you gained from this video. Stay safe. Thank you so much.